Stop that. Hello, good morning, everybody. Welcome to the e-Pathshala. Can you hear me? Vinay, check. So, I take this opportunity to welcome you all for the e-Pathshala classes today. And today our resource person and the lecturer is Mr. Subhas Paule from Maharashtra. Mr. Paule is a head coach at Guwahati National Center of Excellence. He has at least 40 years of experience in cycling, and he has been a consistent coach for many years for Indian Air Force team. And thereafter, he has 2 years back he joined the head coach of National Center of Excellence, LNIP Guwahati. Gentlemen, Mr. Paule, he is distinguished to be coach for. He has been my coach also. So I take this privilege because today I am in Cycling Federation of India as a director, and it is because of him that I am in cycling. So it really matters when it comes to a good coach. When you are really inspired by a good coach, you know how deep you can go, how you can climb the ladders. So today we are in the service of and I will also take this privilege to say that Mr. Paule has also produced another coach, Mr. R.K. Sharma. He is also our same entries in the cycling. Mr. B.S. Daya, who has been a technical, technician, head technician of the Indian team. So I welcome Mr. Paule for this today e-Pathshala, and he will be delivering on the subject cycles and cycling equipment related thing. So Mr. Paule, please take over this. Subhas Paule ji. Please speak, unmute yourself, please. Okay. Am I audible? Yes, sir. Okay. Good morning, dear all. Good morning, dear sirs. Good morning, dear parents, and good morning, participants. Mr. VN Singh has already introduced. My half of the part is done by VN Singh. Thanks, dear VN Singh, for the kind introduction. Dear all, today we are joined this cycling webinar due to the combined initiative taken by the Sports Authority of India, Cycling Federation of India, and the Fit India movement. I sincerely thank the office bearers of the Sports Authority of India, DG Sai, Mr. Sandeep Pradhan, Cycling Federation of India, Sri Omkar Singh ji, Chairman Cycling Federation of India, Khelo India, and I thanks for giving me an opportunity to share my knowledge on today's topics. Am I audible, dear friends? Sir, yes, sir, you are audible. As informed by Mr. VN Singh, I am from Mumbai, I am from Maharashtra. Started my cycling career from the crowded streets of Mumbai. I used to ride on the fixed wheel cycle in the crowded streets around 55 years back. Later on, I joined the Indian Air Force, became an Indian cyclist of the Indian Air Force, and then the member of the services cycling team. I did my diploma in the year 1984-85, cycling diploma from the NS Patiala, and I was a cycling coach for Indian Air Force as well as for the services cycling team. Now, as Mr. VN Singh has told, now I am head coach of the Sports Authority of India,
National Cycling Academy, National Center of Excellence at Guwahati. It is the green healthy complex of LNIP under the leadership of the Dean LNIP. LNIP is Lakshmibai National Institute of Physical Education. It is situated near Guwahati, around 20 kilometers from the Guwahati. Now today's topic, dear friends, today's topic is introduction with racing cycle and equipments. You can see on your left is a road model cycle and on your right is the track model cycle. Depending on the various events, UCI, Union Cyclists International, the body governing the sports, cycling sports in all over the world. Today we are discussing about the 4 events of the UCI: road, track, MTB, and the mountain bike, BMX cycle. So in this picture, you can see on the left is a road cycle, on the right is the track model cycle. The difference between the track and the road, track model doesn't have brakes and it has got a fixed wheel. There is no free wheel in the track model. You have to control your speed with the help of your legs and no brakes in the track cycle. You can see the colored picture, red, yellow, black is the track model. It is more aerodynamic compared to the road cycle. And on the left is the road cycle where you must have 2 brakes. You must have front and rear 2 brakes and a free wheel. Free wheel can be a single speed or multi-speed. Then we will move to the mountain bike and the BMX cycle. BMX is the bike motocross cycle. The primary difference between the BMX and the MTB bikes, that is mountain bikes, is in their design. What purpose they are used. A BMX bike is designed for a sprint around a short man-made track. जो BMX बाइक हम लोग राइट में देख रहे हैं, वो शॉर्ट मैन-मेड ट्रैक के ऊपर हम लोग चलाते हैं. सर एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. आपका ये जो साउंड थोड़ा सा वहां पर कुछ, या तो पंखा ज्यादा तेज से चल रहा होगा, उसको थोड़ा सा स्लो कर लें. सम साउंड बैकग्राउंड कुछ साउंड आ रहा है जी. और ये जो आपका ये वो होगा ना, वो कहीं रगड़ रहा है, इसलिए भी साउंड हो सकता है, उसके कारण थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है. नाउ इट्स ओके आई थिंक. इज इट ओके नाउ? जस्ट या इट्स ओके. Okay, now again we'll come back to the mountain bike cycle and the BMX cycle. BMX is a bicycle motocross cycle. The primary difference between, as I said, is the BMX and the MTB bikes in their design. किस पर्पस के लिए वो साइकिल यूज करते हैं, उसके हिसाब से उसका डिजाइन चेंज हो गया है. डिजाइन में डिजाइन किया हुआ है. BMX साइकिल स्प्रिंट ज्यादा होती है, वहाँ मैन मेड टेरेन रहता है, कंक्रीट या टार का सरफेस रहता है. और माउंटेन बाइक साइकिल में वहाँ आपको रफ रोड है, नेचुरल टेरेन है, हिल में जाना पड़ता है, रफ रोड रहता है, पत्थर वाला रोड रहता है, वहाँ आपको साइकिल चलानी होती है. उस हिसाब से माउंटेन बाइक डिजाइन की है. माउंटेन बाइक में आप सस्पेंशन यूज कर सकते हो. आप दोनों व्हील में सस्पेंशन हो सकता है, फ्रंट व्हील या रियर व्हील. इट इज ऑप्शनल. यू कैन हैव वन व्हील सस्पेंशन. जो साइकिल आपको पसंद है, जो आपको सूटेबल है, उस हिसाब से आप साइकिल. उसमें 2 ब्रेक्स जरूरी है. उसमें मल्टी स्पीड आती है. फ्री व्हील पीछे वाला जो स्प्रॉकेट्स है, 8 स्पीड, 9 स्पीड, आपके स्पीड उसमें 27, 24 स्पीड तक आप उसमें वेरिएशन मिल सकता है आपको, क्योंकि आपको हेवी टेरेन, आपको ग्रेडियंट आपको पार करना है. उसके लिए अलग अलग गियर कॉम्बिनेशन आपको दिए हुए हैं, आपको मिल सकते हो उसमें. दिस इज अबाउट ऑल 4 डिफरेंट मॉडल्स ऑफ द 4 डिफरेंट इवेंट्स ऑफ द साइकिलिंग. नाउ वी विल कम टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द साइकिल्स. थोड़ा हम लोग स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी करेंगे. ये हम लोग स्किप करेंगे और मैं आपको पिक्चर के तरफ ले जाऊंगा.
ये पिक्चर है जो आपकी ओवरऑल बाइक की जो लेंथ है वो 185 सेंटीमीटर अलाउड है. 1.85 meters is allowed by the UCI. This is as per the UCI. आपकी साइकिल की लंबाई 1.585 मीटर्स या 185 सेंटीमीटर्स अलाउड है. उसके ऊपर आपकी डायमेंशन नहीं होनी चाहिए. उसमें अगर आप कोई मडगार्ड वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं तो दैट इज ऑल इंक्लूडेड और वो 1.85 मीटर्स के अंदर आपकी साइकिल होनी चाहिए. सेकंड पैरामीटर है जो आपकी विड्थ है. जनरली विड्थ हम लोग डिफाइन करते हैं साइकिल की हैंडल बार के तरह से, क्योंकि हैंडल बार ही अपना चौड़ा पोर्शन है इसमें. तो 50 उसकी विड्थ मैक्सिमम 50 सेंटीमीटर का हैंडल बार या कुछ भी आइटम आप साइकिल में लगा हुए 50 सेंटीमीटर के ऊपर उसकी चौड़ाई नहीं होनी चाहिए. ओके. थर्ड पैरामीटर है इसमें जो आपकी सीट है वो 24 टू 30 सेंटीमीटर, मिनिमम 24 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर लंबाई हो सकती है. ये हम लोग 3 पैरामीटर ये साइड में डिस्कस किए हुए. दूसरा एक फोर्थ पैरामीटर है जो आपका बॉटम ब्रैकेट है, जहां आपका क्रैंक घूमता है, जो साइकिल का क्रैंक जो घूमता है, जो बॉटम ब्रैकेट पे घूमता है, बॉटम ब्रैकेट एक्सल पे घूमता है, उसका सेंटर और जमीन वो डिस्टेंस मिनिमम 24 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर इज अलाउड. सो इसमें आपकी साइकिल बैठनी चाहिए तो ही आपकी साइकिल क्वालिफाई होती है रेस के लिए. कोई भी रेस अगर आप UCI रिकॉग्नाइज, नेशनल रिकॉग्नाइज अगर आप कोई साइकिल रेस दौड़ाते हो तो ये 3-4 पैरामीटर्स गिने जाते हैं और रेस के दौरान आपकी साइकिल क्वालिफाइड होगी तो ही आपको वो साइकिल रेस में अलाउ किया जाएगा. और एक पैरामीटर है आपकी जो सीट का जो टिप है वो बॉटम ब्रैकेट से अगर आप वर्टिकल लाइन खींचोगे तो 50 मिलीमीटर या 5 सेंटीमीटर पीछे होनी चाहिए, उससे आगे नहीं होनी चाहिए. 50 सेंटीमीटर 50 mm का डिफरेंस होना चाहिए, पीछे होना चाहिए कंपेयर टू आपकी जो ये बॉटम ब्रैकेट से जो आपने लाइन खींची है वो और सीट का टिप वो 50 mm पीछे होना चाहिए. उसके बाद हम लोग अभी फ्रेम के तरफ आएंगे. साइकिल फ्रेम इज बिल्ट अराउंड ए ट्रायंगल. जनरली एक ट्रायंगल या सिंगल ट्रायंगल या डबल ट्रायंगल के अराउंड ये साइकिल फ्रेम बिल्ड की जाती है. उसमें ये जो ऊपर वाली जो ट्यूब है वो जहाँ आप खड़े होते कभी कभी वो उसको कहते हैं टॉप ट्यूब कहते हैं. ये जो नीचे वाली जो ट्यूब है स्लैंटेड ट्यूब है वो डाउन ट्यूब बोलते हैं उसको. और ये थर्ड ट्यूब जो है वो सीट ट्यूब है जिसकी आपकी साइकिल की मेजरमेंट भी वहीं तय होती है. साइकिल की फ्रेम की मेजरमेंट भी सीट ट्यूब के हिसाब से गिनी जाती है. तो दिस इज अबाउट आवर फ्रेम. दिस पार्ट इसको हम लोग फॉर्क बोलते हैं और ये हम लोग फ्रेम बोलते हैं. ये कंबाइन टुगेदर हम लोग इसको फ्रेम एंड फॉर्क बोलते हैं. ओके, सो फार इज इट ओके? हेलो. Yes, sir. Okay. So far, yes, good going. थैंक यू सर, थैंक यू. दूसरा हम लोग हैंडल बार के एक पोजीशन है वो हम लोग ये पिक्चर पे दिख सकता है आपको. आपका हैंडल बार और सीट, आपका हैंडल बार जो टॉप ऑफ द हैंडल बार है वो सीट के ऊपर नहीं होना चाहिए. सीट आपकी हाइट, सीट का हाइट अगर ग्राउंड से 50 सेंटीमीटर है तो हैंडल बार 50 सेंटीमीटर के ऊपर नहीं जा सकता है. दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर विथ रिस्पेक्ट टू द हैंडल बार. दूसरा एक पैरामीटर है आपका जो ये साइकिल का हैंडल बार का जो टिप है, डाउन हैंडल है, ये डाउन हैंडल है, स्विंट हैंडल है. वो टिप, ये जो साइकिल का व्हील का डायमीटर है सबसे ऊंचा पॉइंट, उससे नीचे 10 सेंटीमीटर के नीचे आपकी ये पोजीशन में अलाउड नहीं है. अगर यहाँ कुछ आता है तो आपका पोजीशन ठीक नहीं होता है, आपका साइकिल इज नॉट क्वालिफाइड फॉर द रेस. सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका साइकिल का हैंडल बार का टिप कभी भी 10 सेंटीमीटर के अंदर व्हील के नीचे होना चाहिए. दूसरा पैरामीटर है अगर ये सीधा लाइन आप खींचोगे फोक से या टॉप ट्यूब से या हेड ट्यूब से तो ये जो आपका एक्सल है वो उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए. जो फ्रंट व्हील एक्सल है वो ये जो हेड ट्यूब का एक्सल से क्रॉस, सॉरी ये मिस हो गया. सो हेड ट्यूब का है. और
और एक है पैरामीटर, आप जब ये सेंटर लाइन से फ्रंट एक्सल का जो सेंटर लाइन है वहां से अगर आप लाइन खींच सकते हो, इमेजिन करोगे कि खींची हुई है, तो ये जो आपका हैंडल बार का टिप है, जो आगे का सबसे आगे का पोर्शन है, वो ज्यादा से ज्यादा 50 मिलीमीटर या 5 सेंटीमीटर आगे आ सकता है ये एक्सल के आगे, उसके आगे नहीं आना चाहिए। सो आपको अगर कुछ एडजस्टमेंट करना है हैंडल बार में तो आप अपने टी से आप एडजस्ट कर सकते हो। So this is our regarding, these are all parameters regarding your dimensions which are as per the UCI, Union Cyclist International जो body है उसके हिसाब से। अभी हम लोग जाएंगे the brake control, brake levers वगैरह हैंडल बार्स के पास जाएंगे। The brake controls attached to the handle bar shall consist of 2 support lever। रोड साइकिल में आपके पास ब्रेक हैंडल्स है, दो लीवर्स होना जरूरी है, और इट मस्ट बी पॉसिबल टू ऑपरेट ब्रेक्स बाय पुलिंग ऑन द लीवर्स। आपके ब्रेक लीवर्स पुल होने के बाद ये टाइप की मैकेनिज्म इज अलाउड इन द साइक्लिंग, इन द रोड साइक्लिंग। अगर एनी एक्सटेंशन और any extension to or reconfiguration of the supports to the enable an alternative use is prohibited। अगर आप ये ब्रेक लीवर में कोई मॉडिफिकेशन करते हो, उसकी लंबाई करते हो, लंबा चौड़ा करते हो कुछ, तो अपने हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट करने जाते हो, तो इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट अलाउड। ये ओरिजिनली आइटम आपको यूज करना है। आजकल कंबाइंड सिस्टम ऑफ ब्रेक एंड गियर कंट्रोल आए हुए एंड दैट इज ऑथोराइज्ड। कंबाइंड ब्रेक एंड गियर कंट्रोल है, ये जो मॉडल है ये इसको बोलते हैं STI लीवर, शिमानो टोटल इंटीग्रेशन सिस्टम, इसको नाम दिया हुआ है शिमानो टोटल इंटीग्रेशन सिस्टम। ये जो लीवर में है, आप इसी से ब्रेक पुल कर सकते हो, ब्रेक लगा सकते हो, इसी से आप गियर चेंज कर सकते हो, लो टू हायर, हायर टू लोअर, इट इज ऑल पॉसिबल। 2 लीवर्स होंगे आपके लेफ्ट और राइट में। एक लीवर से आपको फ्रंट ब्रेक एंड चेंज कर सकते हो, रियर डिरेलियर, दूसरे गियर से आप रियर डिरेलियर और रियर ब्रेक लगा सकते हो। तो ये जो लीवर है इसको हम लोग ड्रिफ्टर्स भी बोलते हैं, शिफ्टर्स भी बोलते हैं, और इसको नाम दिया हुआ है शिमानो ने। ज़्यादा इसमें ज़्यादा तरक्की की है, डिज़ाइन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट शिमानो ने किया है, और आज अपने लिए बहुत आसान काम कर दिया। आपको अभी एक ज़माने, मेरे ज़माने में मेरे को गियर शिफ्ट करना पड़ता था, दो लीवर्स होते थे। एक लीवर मेरा नीचे जो आपको बोला डाउन ट्यूब पे रहता था, एक ब्रेक लीवर हैंडल बार में रहता था। तो हमेशा अपने को उसकी पोजीशन, मेरी अगर गियर शिफ्ट करना है तो पोजीशन चेंज करना पड़ता था, हैंड का, हैंडल का, हाथ का, रिस्ट का, और उसमें टाइम भी वेस्ट होता था। So this is an advantages to us with the STI. Okay, am I audible, everybody? Yes, sir. Okay, thank you, thank you. कुछ UCI के और भी रूल्स हैं। Each license holder shall ensure that his equipment does not, by virtue of its quality, material or design, constitute any danger to himself or others. आप जो भी इक्विपमेंट यूज करते हो तो इट इज योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इक्विपमेंट से दूसरे राइडर या आपको उससे डेंजर नहीं होना चाहिए, उससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। Each license holder shall ensure that the equipment he uses on road, track or cyclocross event shall be approved by the UCI according to the specifications of the approval protocols in force and available on the UCI। आपको अगर आप कोई इंटरनेशनल रेस कोई कर रहे हैं, ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियनशिप या नेशनल लेवल चैंपियनशिप, तो आपको UCI लेवल अप्रूव्ड ही इक्विपमेंट आपके साइकिल में लगनी चाहिए। They are designed as per your event, they are designed as per your cycle, they are designed as per equipment, the use of equipment, and that is why you have to use those equipments. Third one is the license holder shall use the equipment which is certified and compliant with the quality and safety standards as provided the manufacturer without any modification whatsoever। जो मैंने आपको बताया है
कोई भी कंपोनेंट है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसकी आप डिजाइन चेंज नहीं कर सकते, उसमें होल गिरा के आप उसका वेट वजन नहीं कम कर सकते। सो मैन्युफैक्चरर ने यूसीआई से अप्रूवल लिया हुआ है वो पार्ट को, और वही पार्ट आप विदाउट एनी मॉडिफिकेशन आपको वो पार्ट यूज करना जरूरी है, उसमें मॉडिफिकेशंस आर नॉट अलाउड इन द पार्ट। This is now we'll come to some equipments. This is a aero bar handle. This is a carbon handle bar, स्विंग हैंडल है ये, और ये डाउन हैंडल है। आजकल कार्बन में भी आ रहा है, एक जमाने में स्टील और अलॉय का हैंडल मिलता था, ये स्विंग हैंडल या राउंड हैंडल, डाउन हैंडल जिसको ही बोलते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट है ये जो एरो बार है, आजकल टाइम ट्रायलिस्ट बहुत ये एरो बार यूज करते हैं। अगर आप एरो बार यूज करते हैं तो और एक पैरामीटर उसमें यूसीआई ने रेगुलेशन में दिया हुआ है, आपका एरो बार का पोजीशन मैक्सिमम विथ, अगर आपका एरो बार में ब्रेक लीवर्स वगैरह सब कुछ है, अगर कुछ भी है तो 75 सेंटीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू बॉटम ब्रैकेट। अगर आप बॉटम ब्रैकेट से एक लाइन खींचते हो और ज्यादा कौन सा टिप जो बाहर आ गया है आपका हैंडल एरो बार का, वो टिप तक, जैसे इसमें ये पोजीशन है और इसमें ये पोजीशन है एक्सल की, वो मैक्सिमम 75 सेंटीमीटर आपको ये अलाउड है। 75 सेंटीमीटर के आगे आपकी ये एरो बार, उसमें टॉलरेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 50 mm का फिर भी आपको टॉलरेंस दिया हुआ है। 75 प्लस 5 सेंटीमीटर, वही आपको ज्यादा से ज्यादा 80 सेंटीमीटर विदाउट एनी टॉलरेंस आपका एरो बार आगे आ सकता है। यह आपको ये उसी के बारे में है, एरो बार के फॉर रोड टाइम ट्रायल एंड इंडिविजुअल परसूट, टीम परसूट एंड किलोमीटर टाइम ट्रायल, a fixed additional handlebar जो may be added to the steering system. The distance, ये जो वही मैंने बताया फॉर रोड, ये जो 75 सेंटीमीटर का है। अभी हम लोग व्हील्स के तरफ आएंगे। व्हील्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द व्हील, जो साइकिल का आपका व्हील का डायमीटर है वो 55 टू 70 सेंटीमीटर अलाउड है। मिनिमम 55 सेंटीमीटर है, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द व्हील इज ओनली अलाउड टू 70 सेंटीमीटर। ओके, और उसकी जो टायर की विड्थ है साइक्लोक्रॉस के लिए 33 mm विड्थ है, अलाउड है। रोड साइकिल के लिए आप लोग को स्टैंडर्ड इक्विपमेंट मिलता है, यूसीआई अप्रूव मिलता है, which varies from 19 mm, 22 mm, 23 mm, 25 mm and up to 28 mm. तो रोड साइकिल के टायर्स 28 mm, ट्रैक साइकिल के टायर 28 mm तक मिलते हैं अपने को, और उसके ऊपर नहीं मिलते हैं, और नॉट, इट इज नॉट आल्सो अप्रूव्ड बाय द यूसीआई। ये जो साइक्लोक्रॉस में है इट इज अप टू 33 mm आपका साइकिल का टायर का विड्थ हो सकता है। और स्पोक्स ऑफ द व्हील्स 12, कम से कम 12 स्पोक्स, अगर आपका स्पोक व्हील है तो कम से कम 12 स्पोक्स अलाउ। 12 के नीचे अगर स्पोक्स होगा तो आपको आपकी साइकिल इज नॉट क्वालिफाइड फॉर द इवेंट टू पार्टिसिपेट। स्पोक का जो डायमेंशन है वो 10 मिलीमीटर हो सकता है। अगर आप उसको कट करोगे तो उसका विड्थ होगा, क्रॉस सेक्शनल विड्थ होगा या क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, तो 10 मिलीमीटर के ऊपर उसका क्रॉस सेक्शन विड्थ नहीं होना चाहिए। आपकी स्पोक्स की थिकनेस 10 सेंटीमीटर मैक्सिमम इज अलाउड। सो दीज आर टाइप्स ऑफ द डिस्क व्हील्स। आजकल तो स्पोक्स व्हील्स भी के ऊपर अभी डिस्क व्हील्स चालू हो गए हैं। दिस इज अ ट्राई स्पोक and this is a full disc wheel. ये पेंटा व्हील है, ये फुल डिस्क व्हील है। और डिस्क व्हील में कुछ, कोई किसी को एडवांटेज भी है, कोई इवेंट्स में एडवांटेजेस है, कोई इवेंट्स में डिसएडवांटेजेस भी है। रोड मास्टर्ट में डिस्क व्हील्स आर नॉट अलाउड। डिस्क व्हील्स थोड़ा हेवी है कंपेयर टू द स्पोक व्हील्स। डिस्क व्हील चलाने में थोड़ा एक्सपीरियंस लगता है। आप अगर डिस्क व्हील के ऊपर आपके तजुर्बा नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल योर डिस्क व्हील्स। साइकिल कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है डिस्क व्हील के ऊपर। नाउ विल कम टू द इक्विपमेंट्स जो हम लोग साइक्लो कंप्यूटर या और भी कुछ इक्विपमेंट्स हम लोग साइकिल के ऊपर लगाते हो। आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आई है,
Any bicycle may be fitted with onboard technology or equipment. आपको अलाउड है onboard technology यूज करने के लिए? कौन सी equipment that has ability and purpose to collect or transmit the data, information or images, provided that it complies with the following conditions. आपको onboard technology यूज करने के लिए अलाउ किया हुआ है UCI ने. कुछ restrictions है उसमें. The system to install the equipment must be designed for use on bicycle and shall not affect the certification of any item of the bicycle. आप अगर कोई equipment use करते हो तो उसको जो सर्टिफिकेशन मिला है साइकिल को, साइकिल के पार्ट्स को, वो उससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए. दूसरा है the system to install the equipment must not allow the equipment to be removed during the race. आपकी एक दफे आपने रेस के दौरान, रेस के पहले अगर आपने स्टार्टर को दिखाया कि मैं ये इक्विपमेंट यूज कर रहा हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी है ये टिल द एंड ऑफ द फिनिश ऑफ द रेस यू हैव टू कीप दैट इक्विपमेंट ऑन द साइकिल. इट इज नॉट टू बी साइकिल से निकालना नहीं है आपको. All data streaming from the riders onboard technology equipment must not be transmitted during the race. आपको ये जो इंफॉर्मेशन है स्टोर की जाती है और आप बाद में रेस के बाद में आप एनालिसिस के लिए ये इंफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हैं. ये टाइप ऑफ अभी ऑनबोर्ड टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट है. ये गार्मिन का इक्विपमेंट है. आजकल बहुत वैरायटी, बहुत कुछ कंप्यूटर अलग अलग बिटवीन के भी आते हैं, सस्ते में भी आते हैं, महंगे भी आते हैं. ये थोड़ा गार्मिन के कंप्यूटर्स है, साइकिल कंप्यूटर, वो महंगे आते हैं. और आपको जैसे लेना है, जो फंक्शंस आपको चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं. बेसिक फंक्शंस आपको इक्विपमेंट में स्पीड, टाइम, मैक्सिमम स्पीड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड ये होते हैं. और छोटा कोई भी आम साइकिल कंप्यूटर में आपको मिलता है. एडवांस जो इक्विपमेंट्स है साइकिल कंप्यूटर है उसमें आपको, जैसे आप इसमें देख रखते हो, आप दिखते हो कि टाइम आ रहा है, स्पीड आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, आप लैप स्पीड क्या चल रहा है, अगर आप सेटिंग कर दिए तो लैप स्पीड क्या है, करंट लैप का टाइम क्या है, ग्रेडियंट क्या है. और दूसरा आप अलग अलग सेंसर्स यूज कर सकते हो. जैसे हार्ट रेट है, हार्ट रेट सेंसर आप यूज कर सकते हो. दूसरा है आपको कैडेंस सेंसर है, आप कैडेंस सेंसर यूज कर सकते हो. उस सब का डाटा आपको मिल सकता है. ये सब डाटा आप अपने साइक्लो कंप्यूटर पे मिल सकता है. एंड दिस इज, आजकल तो साइक्लो कंप्यूटर एक ट्रेनिंग के मैग्जा डिस्क व्हील खरीदने के बजाय आई विल प्रीफर टू गो टू द साइक्लो कंप्यूटर, एडवांस वर्जन्स ऑफ साइक्लो कंप्यूटर, जो आपको ट्रेनिंग के लिए काफी मदद करेगा. उसके बाद हम लोग आते हैं फ्री व्हील्स के ऊपर, स्प्रॉकेट्स के ऊपर आते हैं. जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, मल्टीपल गियर्स एंड ब्रेक्स आर नॉट परमिटेड फॉर यूज ऑन द ट्रैक ड्यूरिंग द कंपटीशन और ट्रेनिंग. आपको ट्रैक साइकिल में मल्टीपल गियर्स अलाउड नहीं है. डिस्क ब्रेक्स आर अलाउड इन साइक्लोक्रॉस. आजकल सभी रेसेस में एक्सेप्ट ट्रैक, सभी साइकिल्स में डिस्क ब्रेक्स आर अलाउड. For races on the road and cyclocross, the use of fixed sprocket is forbidden. दूसरा, जैसे ट्रैक में ये कंपलसरी है, रोड में आपको फ्री व्हील ही कंपलसरी है. फिक्स व्हील एंड विदाउट ब्रेक साइकिल इज नॉट अलाउड ऑन द रोड. दूसरा, जनरल क्लोथिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. When competing, all riders shall wear a jersey with sleeves and a pair of shorts, possibly in the form of a one-piece suit. आपका जर्सी होना चाहिए, जर्सी होना चाहिए. वन पीस सूट इज आजकल बहुत अवेलेबल है, एवरीवेयर इट इज अवेलेबल. और बाय शॉर्ट्स इट इज अंडरस्टूड दैट दीज आर शॉर्ट्स दैट कम अबव द नी. आपकी शॉर्ट्स नी के ऊपर होनी चाहिए, नी के नीचे नहीं होनी चाहिए. और स्लीव्स, विदाउट स्लीवलेस जर्सी इज नॉट अलाउड ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन, एनी कॉम्पिटिशन. एंड इट इज योर, आपको तो मैं सलाह दूंगा कि इवन ऑन व्हेन यू गो ऑन द रोड यू शुड नॉट वेयर अ स्लीवलेस जर्सी. रेन जैकेट्स आप पहन सकते हो. साइक्लिंग शूज, आपके कुछ अच्छे किस्म के पैडलिंग शूज होते हैं. पैडलिंग शूज आर स्पेशली डिजाइन फुट गियर विथ कस्टम मेड सोल्स जस्ट एक्ट फॉर पैडलिंग. आपका सोल जो है थिक रहता है. सी द थिक सोल्स हेल्प होल्ड on the pedals, providing proper grip and comfort to the cyclist. आपका सोल जो शूज का, साइक्लिंग शूज का सोल थिक रहता है
उससे आपको इंजरी नहीं होती, आपके फुट ऑफ द लेग्स को इंजरी नहीं होती है। आप ग्लासेस जैसे स्पेक्स आप ग्लासेस यूज कर सकते हो। द सिंगल लेंस ग्लासेस आर आइडियली यूज्ड ड्यूरिंग द रोड रेसेस टू प्रोटेक्ट राइडर्स आईज फ्रॉम द weather changes or ray of rain, sun, wind, dust and foreign particles. आपको इससे कोई तकलीफ होती है तो आप रेन ग्लासेस आप यूज कर सकते हो। हेलमेट, अभी हम हेलमेट के पास आएंगे। वेयरिंग ए रिजिड सेफ्टी हेलमेट इज कंपलसरी। कोई भी इवेंट हो आपको साइकिलिंग की तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। हेलमेट रिजिड होना चाहिए। ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन ऑन रोड रिजिड सेफ्टी हेलमेट शैल बी वोर्न। आपके सॉक्स है, आप सॉक्स पहनते हो तो सॉक्स की लंबाई भी कुछ डेफिनेशंस है, उसके लिए भी आपके सॉक्स की हाइट जो है वो आपके काफ मसल के ऊपर नहीं होनी चाहिए। हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द लेग्स है, नीचे वाला लोअर लेग, उसके हाफ ऑफ द लोअर लेग्स तक ही आपकी सॉक्स की हाइट आ सकती है। उसके ऊपर सॉक्स आर नॉट अलाउड। सॉक्स यूज इन कॉम्पिटिशन मे नॉट rise above the lane defined as by half the distance between the middle of the lateral malleus ankle joint and the middle of the fibula head, ऊपर वाला knee joint. So मैं जैसे बताया आपको काफ मसल के ऊपर आपका सॉक्स नहीं आना चाहिए। अभी हम लोग विल कम टू द अदर इक्विपमेंट्स, साइकिल इक्विपमेंट्स के बारे में। ये जो कंबाइंड आजकल इसको ये सभी कंबाइंड इक्विपमेंट्स है उसको एक ग्रुप सेट बोलते हो, ग्रुप सेट बोलते हैं। ग्रुप सेट्स और ये इंडिविजुअल पार्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल है। आजकल मार्केट में अपने पास इंडिया में अलग अलग शहरों में बहुत से डीलर्स आ हुए हैं, जिसमें डिकैथलॉन एक है। डिकैथलॉन में बहुत सस्ते में आपको सामान मिलता है एंड इजीली इट इज इजीली अवेलेबल उनके पास। मे बी इट इज नॉट अप टू द वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स, मगर जो बिगिनर्स के लिए है उनके लिए तो डिकैथलॉन की साइकिल जो 20-25 हजार में एक एंट्री लेवल साइकिल आती है इज वेरी गुड। आप दूसरे वही अगर कोई दूसरे मॉडल लेते हो अपर मॉडल तो 70-75,000 आपको लगेगा, मगर एंट्री लेवल जो साइकिल मिलती है डिकैथलॉन में सस्ती आती है। मे नॉट बी एज गुड एज 70,000 बट आपको मालूम होगा कि वेदर यू कैन डू दैट साइकिलिंग। तो उस हिसाब से आप बिगिनर्स के लिए आई विल एडवाइज गो फॉर द एंट्री लेवल, डोंट गो फॉर द हेवी बाइक। ये जो अभी हम लोग ग्रुप सेट के बारे में बात कर रहे थे, ग्रुप सेट में आपके ब्रेक लीवर आते हैं। आपको ये ब्रेक ये सभी पार्ट इंडिविजुअल भी मिलते हैं और एक ग्रुप एज ए कंबाइंड भी मिल सकते हैं। उसमें ब्रेक लीवर्स आते हैं, ब्रेक कैलिपर्स आते हैं, उसमें बॉटम ब्रैकेट एक्सल आता है, उसमें फ्री व्हील मल्टी व्हील्स या स्प्रॉकेट आते हैं, उसमें क्रैंक सेट आता है, लेफ्ट एंड राइट चेन व्हील और दूसरा साइड का क्रैंक आएगा, चेन आता है, रियर डिरेगुलर आता है, फ्रंट डिरेगुलर आता है। और ये जो चेंजर है शिफ्टर जो हम लोगों ने बात किया, गियर एंड ब्रेक चेंजर है। दीज आर ऑल आजकल अलग अलग कंपनी है, एसराम है, शिमानो है, कैम्पेनोल है, अलग अलग कंपनियों के ग्रुप सेट मिलते हैं और इंडिविजुअल पार्ट्स भी मिलते हैं। मगर आपको अगर लेना है तो अगर आपका 11 स्पीड साइकिल है तो 11 स्पीड साइकिल के हिसाब से आपका STI लीवर्स होने चाहिए, आपके स्प्रॉकेट भी वो 11 स्पीड होना चाहिए, आपका चेंजर है वो भी 11 स्पीड होना चाहिए। सो इट इज बेटर टू गो फॉर द ग्रुप सेट। सो वंस यू ऑर्डर अ ग्रुप सेट इट विल बी 11 स्पीड। अगर ग्रुप सेट आए तो 11 स्पीड का सभी सामान मिलेगा उसमें आपको। 10 स्पीड आपने ऑर्डर किया तो 10 स्पीड का सामान मिलेगा। तो 10 स्पीड में आपका चेन व्हील या स्प्रॉकेट और लीवर्स ये सब उस हिसाब से आपके स्पीड के हिसाब से इसमें चेंजेस होते हैं और इस हिसाब से आपको ये पार्ट्स ऑर्डर करने पड़ेंगे और मिल सकते हैं। ये सैंपल है एक रियर डिरेगुलर का। आजकल कार्बन जैसे आपने देखा कार्बन डिस्क देखा, उसमें जो कार्बन डिस्क में जो हब है वो भी कार्बन के आने लगे हैं, उसमें कार्बन के हब फिट होते हैं। सो दीज आर द कार्बन हब्स। और फिर बाद में जैसे हम लोग ने जिक्र किया ट्रैक साइकिल का, ट्रैक साइकिल में फिक्स व्हील यूज करते हैं। सो दीज आर द फिक्स व्हील्स मेड ऑफ एलॉय और स्टेनलेस स्टील। ये आपकी चेन है, चेन के भी
रोड और रोड साइकिल और ट्रैक साइकिल में चेन थोड़ा डिफरेंट है उसमें। रोड साइकिल की सॉरी चेन फॉर रोड एंड ट्रैक विड्थ ऑफ, उसमें जो ये जो डिजाइन है, ये जो एक्सप्लोडेड व्यू है, उसमें आप देख सकते हो कि एक आउटर प्लेट है, 1 नंबर आउटर प्लेट है, 2 नंबर इनर प्लेट है, 3 नंबर है वो पिन है, 4 नंबर बुशिंग्स है, तो और 5 नंबर रोलर है। तो ये रोलर के विड्थ के हिसाब से आपकी चेन की विड्थ इंडिकेट की जाती है। जैसे ट्रैक का रोलर का विड्थ होता है 1/8 इंच, मतलब 3.2 मिलीमीटर आपका जो रोलर है और उसका साइज है 3.2 मिलीमीटर फॉर द ट्रैक चेन। और वही रोड चेन के लिए 3/32 इंचेस या 2.4 मिलीमीटर और रोलर की विड्थ होती है। ये जो पिच है ये 1/2 इंच कॉमन है रोड और ट्रैक में। पिच मतलब ये डिस्टेंस बिटवीन दिस सेंटर पिन एंड दिस सेंटर पिन इज 12.7 mm और 1/2 इंच। ये दोनों, ये ट्रैक साइकिल हो या रोड साइकिल की चेन हो, ये पिच दोनों का कॉमन है। ओनली वेरिएशन जो मैंने आपको बताया रोलर के विड्थ में होता है, रोलर के बीच में, उसके हिसाब से आपके चेन की साइज होती है। ट्रैक साइकिल में ज्यादा ताकत यूज होती है, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग चेन होनी चाहिए। रोड साइकिल में आपके मल्टी गियर्स होते हैं, उसके लिए उसमें स्ट्रेंथ की इतनी जरूरत नहीं है कंपेयर टू आपके 11 स्पीड 10 स्पीड। आपकी चेन छोटे स्प्रॉकेट में मूव होनी चाहिए, उसके लिए उसके रोलर की वेट कम की हुई है। दीज आर योर एक्सेसरीज है। आपके पास चेन रिंग है, आपके पास क्रैंक साइकिल के साथ आपको चेन व्हील मिलता है, क्रैंक सेट मिलता है। मगर किसी कारण आपको अगर वो चेंज करना पड़ता है, चेंज करते हो, आपका गियर नहीं बनता है, आपको चेंज करना है, आपके साइकिल में 48 टीथ का चेन व्हील है, आपको 46 चाहिए या आपको 49 चाहिए या 53 चाहिए, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। मगर उस दौरान आपको ऑर्डर देते टाइम एक प्रिकॉशन लेना है। उसका जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है जहाँ हम लोग माउंट करने वाले हैं, ये जो क्रैंक सेट, उसको बोलते हैं पीसीडी, पिच सर्कल डायमीटर बोलते हैं, या उसको बिटवीन सर्कल डायमीटर भी बोलते हैं, या उसको बोल्ट सर्कल डायमीटर भी बोलते हैं। ये जो डायमीटर है वो जनरली 130 mm, 110 मिलीमीटर, 144 मिलीमीटर ऐसे में आता है। आप अगर आपके पास क्रैंक सेट है तो उसमें जैसे यहाँ लिखा हुआ है बीसीडी, तो ये बीसीडी आपको देखना है, उसी के हिसाब से आपको आपका अगला चेन व्हील अगर खरीदना है तो आपको ऑर्डर करना है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कंपटीशन ट्यूबलर साइकिल का। आजकल डिस्क व्हील हो गए या कोई और एडवांस साइकिल हो गए, तो उसमें आपको हम लोग ट्यूबलर यूज करते हैं। ट्यूबलर का एडवांटेज है लाइट वेट रहता है, टायर प्रेशर वो ज़्यादा ले सकते हैं। तो ट्यूबलर, कंपटीशन ट्यूबलर और रोड ट्यूबलर, थोड़ा ट्रेनिंग ट्यूबलर में थोड़ा फर्क है। बाहर से दिखने में ज़्यादा आपको मालूम नहीं पड़ेगा, मगर उसका जो वेट है, कंपटीशन ट्यूबलर का वेट अराउंड 180 ग्राम 200 ग्राम ऐसे होता है। और वो उसकी कैपेसिटी, टायर प्रेशर की कैपेसिटी 220 psi तक वो प्रेशर लेता है कंपटीशन ट्यूबलर। एंड कंपेयर टू द रोड ट्यूबलर का वजन थोड़ा हेवी रहता है, 250-300 ग्राम तक जाता है। उसका टायर प्रेशर भी आप 120, 110, 120 psi पाउंड्स पर स्क्वायर इंच हम लोग बच सकते हैं उसमें। These are the equipments we have discussed. Then we will come to the rollers. Some of the training facility के लिए हम लोग rollers use कर सकते हैं। Rollers can be used indoor, outdoors. On roller you need to balance. Roller का भी कुछ advantages है। रोलर्स में आजकल रोलर्स है, ट्रेनर्स है, और भी कुछ इक्विपमेंट्स आए हुए हैं, मगर यहाँ मैं रोलर का आपको एडवांटेजेस बोल रहा हूँ। ऑन रोलर यू नीड टू बैलेंस योर बाइक। आपको रोलर में आपकी साइकिल बैलेंस करनी पड़ती है, बट उस हिसाब से रोलर इम्प्रूव योर बाइक हैंडलिंग स्किल्स, बैलेंस, पैडलिंग टेक्निक एंड लेग स्पीड। रोलर से ये आपको एडवांटेज मिलता है। आपको थोड़ी तकलीफ होती है इनिशियल फ्यू डेज
आपको तकलीफ होगी बैलेंसिंग करने में, रोलर बैलेंस करने में, मगर ट्रेनिंग के लिए रोलर बहुत अच्छे रहते हैं। उसमें आपके बैलेंसिंग में होगा स्किल, उसमें आपको जैसे मैंने बताया इम्प्रूव योर बाइक हैंडलिंग स्किल, बैलेंस, पैडलिंग टेक्निक इम्प्रूव होते हैं। लेग स्पीड के लिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। हमारे बच्चों में मैंने देखा हुआ है अपना लेग स्पीड नहीं है। लेग स्पीड मतलब आपको आरपीएम हाई कैडेंस से आपको साइकिल चलानी है। आप मैक्सिमम मैंने देखा 125 130 तक हम लोग, मेरे पास जो बच्चे हैं वो 125 130 आरपीएम जाते हैं, और वही स्टैंडर्ड के बच्चे इंटरनेशनल आप दोगे तो 140 आरपीएम तक जाते हैं। तो ये लेग स्पीड के लिए ये जो रोलर का है एडवांटेज मिल सकता है। रोलर ऑल्सो कॉस्ट लेस, इसका कॉस्ट थोड़ा कंपेयर टू दूसरे टाइप, अभी जो हम लोग आगे जाएंगे ट्रेनर के पास, उसकी कॉस्ट कम है। दिस इज अ ट्रेनर टाइप्स ऑफ, दिस इज वन टाइप ऑफ ट्रेनर। उसमें क्या होता है, आपकी बाइक फिक्स हो जाती है ट्रेनर, जो बाइक क्लैम्प्स इनटू अ ट्रेनर में आपकी बाइक फिक्स होती है, तो उसमें बैलेंसिंग जो पार्ट है निकल गया, तो उससे ये एक डिसएडवांटेज है आपको ट्रेनर में कि आपको बैलेंसिंग इम्प्रूवमेंट नहीं होती, कोर में कुछ प्रेशर नहीं आ रहा है आप। सो ट्रेनर में योर बाइक clamps into a trainer, this makes riding inside very stable and safe as compared to rollers. बट इसका फायदा ये नए लोग हैं, नए साइकिलिस्ट है, उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर रोलर के ऊपर उनको दिक्कत हो सकती है तो ये ट्रेनर के ऊपर दे आर स्टेबल एंड विदाउट एनी फियर ऑफ डेंजर, कोई गिरने की फिक्र ना करते हुए वो लोग ट्रेनर के ऊपर ट्रेनिंग कर सकते हैं। बाद में आजकल वाइट बाइक आया हुआ है अपने पास, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में वाइट बाइक सही है, और ये इट कॉस्ट अराउंड 2.5-3 लाख। तो ये आम आदमी के लिए वाइट बाइक वाइट बाइक इज नॉट अफोर्डेबल फॉर द कॉमन पर्सन, मगर इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। इसमें आपको जो भी कुछ डेटा जो हम लोग ने साइक्लो कंप्यूटर में देखा वो सभी आपको स्टेशनरी साइकिल में मिलता है। आप कितने स्पीड से, कितने आरपीएम से, कितने पावर से, आजकल पावर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है कंपेयर टू द हार्ट रेट और पावर फैक्टर। हम लोग पावर के वजह से आजकल काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। कोई भी ट्रेनिंग यूनिट है आजकल पावर के हिसाब से करते हैं। आप ये जो साइकिल है ये आपको लेग स्पीड का पावर बताता है, राइट स्पीड का पावर बताता है, क्या इम्बैलेंस है, ये सब आपको ये कंप्यूटर में, यहाँ जो कंप्यूटर फिट किया हुआ है वो कंप्यूटर में आपको इंफॉर्मेशन मिल सकता है कि आप लेफ्ट से क्या पावर लगा रहे हो, राइट से क्या पावर लगा रहे हो, वेदर देयर इज देयर एनी इम्बैलेंस, क्या कैडेंस चल रही हो, क्या टाइम से चल रहे हो, ये सब आपको ये वाइट बाइक से मिलता है। These are some वर्कशॉप टूल्स, वर्कशॉप स्पेयर्स है जिसमें आप देखते हो स्प्रॉकेट्स है, स्प्रॉकेट के पार्ट्स होते हैं। ये जो मैंने बताया आपको चेन व्हील, आपको अगर रिप्लेस करना है तो उसके जो चेन व्हील के नट है, स्क्रूज है, ये आपके रिलीज मैकेनिज्म है, और ये सब टूल्स है, और ये आपकी ट्यूब्स है, स्पेयर ट्यूब्स है, ये सब आपके पास ये वर्कशॉप इक्विपमेंट्स है, वर्कशॉप में होना जरूरी है। These are also the workshop set. ये सब workshop set है। That's all from me. Dear Viren Singh. Hello. 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 Viren. Hello. 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 Yes, Paulaji. I finished my topic. Anything? Okay. Now, since already we have past 11:45, so we have covered most of the equipment, cycling equipment used in cycling races. आपने थोड़ा इसको एडिशन में थोड़ा बताना चाहूँगा
कि जो साइकिलें हम आपने इक्विपमेंट बताया आजकल इंडिया में बहुत ही रेडिली अवेलेबल है। हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं स्टेट के जो कोचेज हैं इन लोगों को सबको पता होगा कि आजकल इंडिया के लगभग हर कोने में डेकैथलॉन शॉप्स खुल चुके हैं। Earlier it was very difficult to get these cycling equipments because very few people were importing it and इसको साइकिलिस्ट को अवेलेबल करने में बहुत मुश्किल होती थी। एक एक आइटम इनमें से जो भी आपने आज दिखाया है वे सब के सब फॉरेन मेड आइटम्स हैं 95%, एक्सेप्ट ये जैसे आजकल ड्रेसेस इंडिया में बन जा रही हैं, थोड़े बहुत हेलमेट्स वगैरह मिल जाते हैं। बट सबको आप जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम आइटम्स फॉरेन मेड है। ईच एंड एवरी साइकिल, रोड रेसिंग साइकिल हो या ट्रैक रेसिंग साइकिल हो या उनसे कंपोनेंट्स हैं, सो द अवेलेबिलिटी इज द मेन कंसर्न फॉर द साइकिलिस्ट। तो हर आदमी एंड मेनी पीपल जो लोग इसके बिजनेस करते हैं दे यूज्ड टू चीट आवर साइकिलिस्ट। They used to take lot of money for simple reason। छोटा सा सामान है आपका, उसके भी उनके 3 गुने दाम लिया जाता था। तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम बड़े मेट्रोज में डेकैथलॉन शॉप्स खुल गए हैं जहां पर साइकिल के बहुत सारे इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, रेडिली अवेलेबल है। उसके अलावा भी जो कुछ लीडिंग शॉप्स भी हैं हर सिटी में, दिल्ली, मुंबई, पुणे, त्रिवेंद्रम, इवन सो वी आर एबल टू गेट। एंड मेरे ख्याल से किसी भी साइकिलिस्ट को अगर साइकिल लेना है या किसी प्रकार की सहायता लेनी है तो हमारे जो स्टेट सेक्रेटरीज हैं या साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स हैं, वी आर रेडी टू हेल्प देम एट द मिनिमम व्हाट एवर द बेस्ट कॉस्ट अवेलेबल। नाउ जैसे कि आपने बताया डिस्क व्हील के विषय में, आपने बताया डिस्क व्हील्स वंस अपॉन ए टाइम lakhs रुपीस, 1 लाख रुपए से ऊपर इसके कॉस्ट होता था। एंड मैं आपको सबको बताना चाहूंगा कि डिस्क व्हील जो कोरिमा डिस्क व्हील कंपनी का मैनेजर साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में आके मीटिंग करके गया है एंड ही हैज ऑफर्ड दिस डिस्क व्हील्स, कोरिमा डिस्क व्हील C+, जो बेस्ट क्वालिटी के डिस्क व्हील्स हैं उनके पास, वो 60,000 प्लस 60,000 अराउंड में दे हैव ऑफर्ड इट। सो इन केस एनी स्टेट और बल्क में अगर चाहिए तो हमारे स्टेट्स डिमांड दे सकते हैं एंड साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इज रेडिली हैप्पी टू इंपोर्ट दैट फॉर द स्टेट टीम्स। सो सिमिलरली लुक साइकिल मैनेजर, बिकॉज कोरिमा एंड लुक साइकिल दे आर सेम कंपनी इज मैनेजिंग, तो लुक साइकिल में भी के मैनेजर आके और CFI में ही हैड ए मीटिंग विद अस एंड चेयरमैन, हमारे चेयरमैन ओंकार जी के साथ मीटिंग करके गया है एंड ही हैज ऑफर्ड वेरी सब्सटेंशियल डिस्काउंट ऑन दिस साइकिल्स। सो वी आर वेरी श्योर दैट व्हाटएवर साइकिल्स टुडे our cyclists can afford, we are ready to extend them the best possible help। जितना कम से कम उनको कॉस्ट में हो सकता है हम उनको अवेलेबल कराना चाहते हैं और कराना के लिए हम प्रतिबद्ध। Now of course I wanted to have a little session on bike positioning also, जैसे आप साइकिल पर पोजीशन कैसे बनाएंगे, बट टाइम के कमी की वजह से आज हम इक्विपमेंट तक ही रखेंगे। थोड़ा एक चीज और बताना चाहूंगा कि सभी जो श्रोता हैं जो भी हैं क्वेश्चन पूछना चाहें दे कैन रेज देयर हैंड। कोशिश कीजिए कि आपके जो क्वेश्चन है वो उस दिन के जो सिलेबस है, जो टॉपिक है, उसी से रिलेटेड टॉपिक रखिए। वी आर गोइंग टू इशू ए सेपरेट ईमेल आईडी। हम आपको एक सेपरेट ईमेल आईडी देने जा रहे हैं जिस पर आप अपने दूसरे क्वेरीज, जनरल क्वेरीज अगर आपकी कोई भी है उस पर आप लिखिए और हम उसको जवाब देंगे। क्योंकि क्लास के दौरान एक घंटे का क्लास है, वी कैन ऑफ कोर्स स्ट्रेच टू 10-15 मिनट्स, बट एवरी डे 2 घंटे करने के लिए मुश्किल होता सभी को। एवरीबॉडी हैज देयर ओन शेड्यूल ऑलरेडी फिक्स्ड। सो
क्वेश्चंस जनरलाइज ना होके स्पेसिफिक रहे, जो टॉपिक है उसी से संबंध में क्वेश्चन आप पूछें और काइंडली रेज योर हैंड। जो दूसरे जो क्वेश्चंस हैं, जनरल क्वेश्चंस हैं, उसके लिए हम आपको एक ईमेल आईडी जारी करना चाहते हैं, जो कि CFI, आप लोग नोट कर सकते हैं, cfi.info2020@gmail.com। Please note your general questions and anything related to cycling development or your queries can be answered on cfi.info2020@gmail.com, and we'll happy to extend you all kind of support for the classes every day. मैं सभी साइकिलिस्टों से यह निवेदन करूंगा कि आप लोग अपना नोटबुक और कुछ लेकर बैठें जब आप क्लास के लिए बैठते हैं तो, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपको लगता है या कोई क्वेश्चंस आपके मन में आता है उसको नोट करें और क्लास के लास्ट में आप उसको पूछ सकते हैं। दूसरा, कुछ अगर आपकी अच्छी चीजें समझ में आती हैं उसको भी नोट करें। अदरवाइज ये जो एवरीडे क्लास फेसबुक पर भी अपलोड होता है और यूट्यूब पर भी अपलोड होता है, तो आप सब YouTube पर जाकर और इसको कभी भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं और रिवाइंड करके आप दोबारा इसका नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, प्लीज रेज योर हैंड एंड वी विल अनम्यूट देम। All participants, please raise your hand so that we are unmuting you. जिनका बताइए। जय ज्योत्सना। जय ज्योत्सना, Please unmute yourself. Jay Jyotsana. Next, Usha T. Nair. Usha Nair ji, please unmute yourself. Madam Usha ji. Good morning, VNG. Good morning. So I have a suggestion. All the classes, all the lectures are in Hindi. The southern cyclists, southern state students I are can understand. Malayalam speaking and they cannot understand the Hindi. So I have a suggestion. If your classes can be taken, I understand your point. Excuse me, madam, Usha ma'am. Adi sir, good morning, Gautam. कैसे हैं? Good morning, thank you. But my presentation is in English. No, I have translated in Hindi. Most of the classes, no, southern people, my students, I had given them ID and password to listen to classes. Okay, But the thing is, they cannot understand anything. But my PPT is in the English, so they will understand if they refer it later on. Just for a remind you, all of you. Your point is very much valid, ma'am. And of course, my next lectures, I will try to tell my miss. I will suggest all my resource people to please define the things in Hindi as well as in English also. Okay. So it will be taken care of in future. Yeah, thank you very much. Thank you. Thank you, madam, and hope your students are taking part regularly. They are listening. Very nice. If they have any problem, you can tell them. You can also explain that. Yeah. Yes. Thank you. Thank you. Good day. Thank you. Good day. Next, Mr. Vikas Singh. Mr. Vikas Singh. Rakesh Kumar Raipur. Rakesh Kumar Raipur. Next one is Khaja Manbi. Unmute yourself. Chirag. Please unmute yourself. Mr. Chirag. Mr. Salvin. Please unmute yourself.
तुम यहाँ से कर रहे हो ना? तुम यहाँ से कर रहे हो? Okay, next. Anish Palre. Mr. Anish. Hello. Yes, please. Good morning, sir. I am from Mumbai, and Yeah. my question is suppose if किसी को कोच बनना है, साइकिलिंग कोच, तो फिर उसका सर्टिफिकेशन इंडिया में अवेलेबल है या फिर कहाँ से करना पड़ेगा? Okay. NIS पटियाला से कोर्स होता है। आप अभी फॉर्म निकले हुए हैं और 31 अगस्त तक इसका फॉर्म भरने का डेट भी है। इफ यू आर ए ग्रेजुएट यू कैन फिल द फॉर्म, बिकॉज NIS कोर्स करने के बाद में 1 साल का कोर्स होता है पटियाला में। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर साइकिलिंग फेडरेशन भी कराएगी। 1 वीक कोर्स होता है दिल्ली में, उसके लिए महाराष्ट्र एसोसिएशन आपका नाम फॉरवर्ड करेगा। क्या दिल्ली में हम कोर्स कराते हैं नेशनल लेवल का, उसमें जैसे स्मॉल रिफ्रेशर्स कोर्स होते हैं कोचिंग के लिए, उसमें हम स्टेट से नाम मांगते हैं। आपके सेक्रेटरी आपका नाम फॉरवर्ड करेंगे, जो महाराष्ट्र के सेक्रेटरी, तो आपको यहाँ पर मौका दिया जा सकता है। बट फॉर NIS डिप्लोमा आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और वहाँ फॉर्म भरना पड़ेगा। हर साल जून जुलाई में, सॉरी, एप्लीकेशन तो मार्च अप्रैल में निकलते हैं, जून में उसके ट्रायल्स होते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ जून जुलाई। तो अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के NIS पटियाला वेबसाइट पर आप जाओगे तो फॉर्म मिल जाएगा। ओके। इसका लास्ट डेट 31 अगस्त है। ओके। और उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है? स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, यू शुड बी स्पोर्ट्समैन। उसमें पॉइंट्स है, उसमें एग्जाम होगा, उसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा आपका, और आप अगर फॉर्म पढ़ोगे तो उसमें सारी जानकारी दी है। बट टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो जितने पार्टिसिपेंट्स आएंगे उसके आधार पर आपको कंप्लीट करना है, एंड इफ यू क्लियर दैट एग्जाम प्लस फिजिकल टेस्ट you will get the admission. It is 1 year course, and after that you will get NIS diploma. ओके, ठीक है। थैंक यू सर। नेक्स्ट दत्तात्रेय सर। नेक्स्ट दत्तात्रेय सर। दत्तात्रेय जी, unmute please. हेलो। Yes. हेलो। हाँ पाउले जी, Yes. आपने पूरा बता दिया पाउले जी। एक सभी को वेट, मिनिमम वेट के बारे में बता दीजिए भाई। वेट के बारे में। हाँ, वो एक तो दत्तू साहब ने जो बताया है, साइकिल का मिनिमम वेट 6.8 kg अलाउड है। 6.8 kg के ऊपर नीचे आपकी साइकिल UCI क्वालिफाई नहीं होती है। तो कोई भी रोड साइकिल हो या ट्रैक साइकिल हो, उसकी जो वेट है 6.8 kg के नीचे नहीं होनी चाहिए, विथ ऑल एक्सेसरीज। थैंक यू डियर दत्तात्रेय। हाँ, और एक चीज बता दीजिए पाउले जी। हाँ जी, बोलिए। वो बाइक चेक भी होगा जब भी हर बार कंपटीशन होगा ना नेशनल का, बाइक चेक होगा बोल के बता दीजिए। राइट। हाँ, जो मैंने आपको जो पैरामीटर्स बताया है, सीट की हाइट कितनी, सीट की लंबाई कितनी है या हैंडल कितना है, उसमें एक बाइक चेक का एक गेज आजकल मिला, रेडीमेड आता है। उसके आपकी साइकिल, वो गेज में आपकी साइकिल हर इवेंट के पहले आपकी साइकिल चेक होती है। जो इवेंट में आप पार्टिसिपेट करने वाले हो वो इवेंट के लिए बाइक चेक होता है। वो बाइक चेक में आपकी साइकिल आपको लेके जानी पड़ती है फैसिलिटी में। वहाँ वॉलंटियर्स रहते हैं, ऑफिसर्स रहते हैं, टेक्निकल ऑफिसर्स रहते हैं, वो आपकी साइकिल चेक करेंगे
जो मैंने पैरामीटर्स बताया उस हिसाब से वो गेज बना हुआ है। इसमें इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ये साइकिल क्वालिफाई होती है या नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो आपको उसमें मॉडिफाई करके वापस साइकिल आप ला सकते हो, मगर बिफोर द इवेंट स्टार्ट्स। इज इट ओके दत्तात्रेय? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, बस वही बताना। वेलकम। Next. Salvin. Mr. Salvin. Yes, Mr. Salvin. Please unmute yourself. Mhm. Anything next then? Is not able. Vignesh SP. Mr. Vignesh, have any question? Unmute yourself. आप लोगों के जो स्क्रीन के नीचे एक म्यूट बटन है, लेफ्ट हैंड में सबसे नीचे, वहां पर आप क्रॉस होगा, रेड कलर में होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप बात कर सकते हैं। Yes, Mr. Vignesh, please. Yes, sir. Let us know what is your question. Speaker, we are not able to hear you. You have unmute yourself, Vignesh. आपके स्क्रीन पर नीचे जो म्यूट बटन है उसको आप क्लिक करो। Yes, now you can speak. I think there is some problem with your audio. Next person. Mr. Aryan. Hello sir, this is Sahil from Bhiwani, Haryana. Okay. And sir, I am 15 years old. And sir, there is no any kind of cycling track in our state. Sir, can I come to Delhi for start track cycling? Okay, you see, there is a track is going to be built up in Kurukshetra. Very soon, you will have by next year. Yes, You sir. have a track in the Delhi track is already occupied. 70 people are already training, so we have no extra space for training. आपको दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुरुक्षेत्र में ट्रैक बनने जा रहा है, अगले साल तक आपको ट्रैक अवश्य बन के वहां पर तैयार होगा। Thank you, sir. वेलकम। Next is Mokal Sandesh. Aryan. Hello, sir. Yes. I'm Sandesh from Nashik, Maharashtra. Okay. Sir, I had one doubt that is this year any of the matches are going to held? Okay. जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो सिचुएशन है पूरे कंट्री का सिचुएशन अभी कोविड-19 के को लेकर काफी गंभीर है, बट हम आशा करते हैं कि अक्टूबर-नवंबर तक इसमें कुछ न कुछ बदलाव आ सकता है या कुछ दवाइयां भी गवर्नमेंट की तरफ से टीका वगैरह का इजाद हो सकता है और ऐसा थोड़ा सा कंट्रोल में होने के हमारा नेशनल चैंपियनशिप जरूर कंडक्ट होगी और वो हो सकता है नवंबर-दिसंबर के बाद में। थोड़ा लेट होगा, लेकिन जैसे ही सिचुएशन कंट्रोल में आने के बाद में साइकिलिंग फेडरेशन कंपटीशन जरूर कराएगी। ओके, और उसका डेट हम वेबसाइट पर भी डालेंगे बहुत जल्दी, बट वेट अंटिल सितंबर, अभी 1-2 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्मृति के प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Hello, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग।
I'm Smriti K from Coimbatore. Very well. So I have a doubt that which age should we participate in national appropriately? Which state? Which age should we Age. participate Okay. in nationals appropriately? Can you please tell in English? Yes. I will tell in English. What is your age? Sir, my age is 9 years. 9 years. So from 12 years, you can participate in national very appropriately. But from 9 to 12, you just continue. Which year born you are? Which Sir? year born? Your year of birth. 2010, sir. Pardon? 2010, sir. 2010. So 22 national championship you can take part. Okay. Thank 22. you. This is 20 already going to be over. So just wait for next year. And 22 from January, you are allowed to participate. But later continue her training. Yes, you can continue. Practice. Okay. Okay, thank you, sir. Welcome. Next is Pritam Mandal. Pritam Mandal. Please unmute yourself. Yeah, Aryan. Yes, next. Next is with the mobile name Oppo A1K. Everyone, please register. When you are registering the Zoom, you must put your name there. हेलो. Yes. हेलो सर. Yes. सर मेरा जो क्वेश्चन है वो सुभाष सर के लिए है. ऐसी कौन सी बाईसाइकिल रोड बाईसाइकिल सूटेबल होगी, चीप कॉस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी? थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. देखो आपका स्टैंडर्ड क्या है, उस हिसाब से आपको साइकिल खरीदनी पड़ेगी. आप कौन से इवेंट की तैयारी कर रहे हो? एक्सक्यूज मी सर, स्टेट लेवल के लिए. स्टेट लेवल के लिए. अभी आपके पास कौन सी साइकिल है? अभी सर नॉर्मल है. और आपकी एज क्या है अभी? 20. आप नॉर्मल साइकिल के ऊपर देख लो. स्टेट लेवल में एक नॉर्मल साइकिल की भी रेस होती है और आपकी कैपेसिटी जानने के लिए. दूसरी स्टेट लेवल में आपकी रेस साइकिल की भी रेसेस होती है. रोड रेस जो होती है उसमें नॉर्मल साइकिल भी अलाउड है. और आपको हाईफाई साइकिल खरीदनी जरूरी है, जबकि मैं बोलूँगा कि आपको ट्रेनिंग जरूरी है. आप ट्रेनिंग करते रहोगे, ट्रेनिंग अच्छी करोगे. साइकिल इज नॉट दैट, साइकिल मैटर नहीं करती है ट्रेनिंग के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए. ओके सर, मतलब यू मीन नॉर्मल साइकिल से भी हो सकता है? नॉर्मल साइकिल से आप पहले देख लो, आप कोई लोकल रेसेस में या नजदीक की जो भी कोई रेसेस होती है. हाँ, आपके पास पैसा है तो आप 70-80,000 की एंट्री लेवल की साइकिल ले सकते हो. अगर नहीं है तो आप जो साइकिल है आपके पास, उस साइकिल से आप पहले ट्रायल तो लो, कोई रेस में पार्टिसिपेट करके देख लो कि क्या है. मगर उसके लिए कोई भी हाई फंडा 10 लाख की साइकिल लेके विदाउट ट्रेनिंग कोई फायदा होने वाला नहीं है. आपको साइकिल ट्रेनिंग हो गई तो साइकिल मैटर करती है. तो उस हिसाब से आपको साइकिल खरीदी करनी है. साइकिल डिकैथलॉन में जाओगे तो 20-25 हज़ार में एंट्री लेवल की साइकिल विद 27 इंच की व्हील्स, पत्ते वाले व्हील रिम मिलते हैं. वही साइकिल पूरी एंट्री लेवल की दूसरी दुकान में जाओगे, जायंट या और कोई ट्रैक में जाओगे तो 70-80,000 तक आएगी. वो साइकिल थोड़ी हल्की रहेगी. तो आप आपके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आप साइकिल ले लो, मगर ट्रेनिंग करना जरूरी है. आपको अगर मैं 10 लाख की साइकिल ट्रेनिंग बिना ट्रेनिंग के दे दूंगा तो कुछ उसका फायदा नहीं होगा. यस सर. सो वन मोर क्वेश्चन, अगर कोई एथलीट नेशनल या एशियन कर लेता है, देन उसको सर फिर CFI प्रोवाइड करता होगा ना, बाईसाइकिल एंड एक्सेसरीज वगैरह? आपने जैसे बोल दिया है, जैसे VN सिंह साहब ने बोल दिया है, वंस यू आर इन द नेशनल कैंप्स, अगर आप नेशनल कैंप में आते हो तो सभी फैसिलिटीज आपको नेशनल कैंप में मिलती है. वहाँ आपके साइकिल्स भी है.
जैसे आजकल मैं हेड कोच हूँ NCOE जैसे साई नेशनल साइकिलिंग एकेडमी का, तो वहाँ हमारे पास साइकिल्स है, हमेशा आप भी साइकिल्स है, रोड की साइकिल है, ट्रैक की साइकिल है। वंस यू क्वालिफाई फॉर दैट नेशनल साइकिलिंग एकेडमी, आपको साइकिल गवर्नमेंट देगी। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। वैसे मैं बताना चाहूंगा इनको कि आजकल 60,000 से लेकर और 5 लाख तक की साइकिलें अवेलेबल है मार्केट में। डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल कंडीशन यू कैन ऑप्ट फॉर, लाइक कनेंडल है, मेरिडा है। आपको एलॉय की साइकिलें सस्ती मिलेंगी, उसमें आप कोई भी साइकिल ऑप्ट कर सकते हो सस्ते दाम की। अगर ज्यादा पैसे है तो 1 लाख से ऊपर आपको कार्बन की साइकिलें मिल जाएंगी इन सभी कंपनियों की। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। Next, anybody? Okay, we'll finish with another 2-3 questions. Others KA. Others. Sir, I am practicing on an MD and I have Yep. to participate on road racing. Your sound is not clear, beta. थोड़ा सा जोर से बोलिएगा. Sir, I am from Kerala. Okay. I am practicing for road racing. Good. Now I have an MDB. Yeah. Now my coach said that I have to buy a racing bike for better practice and its essential commodities. Now see, first you have to select, I mean decide yourself and your coach that what event you want to participate in future. If you want to participate in mountain biking, then No sir, I want to participate in road cycling. If you want to participate in road cycling, then naturally the mountain bike will not be suitable for that, and you must go for a road race cycle. Yes. And now he said that I want to buy a professional road race bike and a cyclocomputer, power meter, etc. And Listen. When you start cycling, power meters and all is not necessary. As this Paule Saab has already told that from beginning, don't go for very high quality and equipment. You have to have a good road racing cycle. There is nothing that you need a power meter at the beginning stage. Okay, sir. Okay, when you develop yourself in elite level and junior level, then and if you are selected in any of the NCOEs academy में अगर कहीं सिलेक्शन हो गया तो आपको हर तरह की फैसिलिटी भी मिलेगी। लेकिन अभी आपके पास या गार्जियन के पास आपके पास जितना रिसोर्सेस है उसके आधार पर आप अपने लिए एक साइकिल चूज कीजिए और उस पर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर मीटर अगर किसी से कोई सजेस्ट कर रहा है तो गलत है। मैं वो कोच से बात करना चाहूंगा। आप we should discuss with him. Now I am practicing for 8 months properly. What is your age? I am now 18. 18. I went to state championship for yes. So you are already in junior category. Yeah. No problem. You practice hard and get into when participate in national championship. And I participate that 2 events on my friend bicycle. Now I had no road bike. I want to buy a road bike, and it costly 1 lakh above. They get any financial help from other sports authority or from? See, sports authority will only extend financial help to those who are of very good category cyclists. If you are a national level medalist, you excel in junior or sub-junior level, we are ready to give all facility when you are selected for the academy. Because now, suppose if you are best in hundreds of while, we are ready to help, but not to the tail enders. Okay, thank you. Welcome. Thanks. Okay, last question. Next is Sri Sai Saran.
sir. Yes. Am I audible, sir? Okay, yes. I have the same question as the first ma'am asked. I want the class in English. Pardon? Sorry? What's your age? No, hello, he wants a class in English. Okay, a class in English. Okay, okay. We will deliver, explain in English also. Okay. Yeah. No problem. So all lecturers, this for you. Okay, okay. From tomorrow onward, it should be made little. This explanation should also be in English, so that our South Indian boys are able to understand. Maxwell ji, we have to make amend of this. Anyway, with this, I thank Mr. Paulaji for his wonderful lecture and the way he has explained this whole topic today. I also thank all my colleagues here who have been watching. I saw all my those who are going to lecture in future, because they have to see the shortcomings and make amend of this. So later on, we are going coming up with Hindi and English both. सभी को हम अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे समझाने की, कि जिससे कि नॉर्थ इंडिया के बच्चे हिंदी में और साउथ इंडिया के बच्चे इंग्लिश में समझ सकें. Okay, with this, I told you yesterday that we have a, sorry, today there is, if any question to anybody, cfi.info 2020@gmail.com. This is our new email, and anybody want to raise any question can send here. We will be happy to reply that. Thank you for today class. Join for tomorrow, but I am seeing that there are people who are registering. Please put your name. And exactly 11 o'clock, we start the classes. Thank you, everyone. Thank you, Paulaji. Thank you. Welcome.